अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सेल स्ट्रक्चर के दो और सेलुलर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने जा रहे हैं। और इन सेलुलर स्ट्रक्चर्स को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपकी एग्जामिनेशन के हवाले से जो भी कंटेंट है वो इसमें जो है वो कवर हो। तो सबसे पहले जिस सेलुलर स्ट्रक्चर की हम बात करने जा रहे हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर की पहली जो है वो फॉर्म के तौर पर इधर पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, सीक्वेंस में आप कुछ भी स्ट्रक्चर आगे पीछे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो सीक्वेंस दे रहा हूँ वो जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस आपके पास कोई ऑथेंटिक सीक्वेंस हो। आप किसी भी स्ट्रक्चर को एक आगे पीछे जो है वो अपनी स्टडी में ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, आपके सामने मेंशन भी किया गया है। इट इज कॉल्ड एज दी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। So first of all, we discuss about this structure known as the endoplasmic reticulum. Usually, this endoplasmic reticulum is defined as the inner plasma network. In case of animal cells and plant cells, we can say it is present in both types of cells. Means it can be observed in an animal cell as well as in a plant cell. Whenever we are going to observe endoplasmic reticulum under the microscope, so we cannot see endoplasmic reticulum with the help of light microscope. So this point is very important. We cannot see it, CER, under light microscope. तो ये के हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं कि जो रेजोल्यूशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप का वो तकरीबन 200 नैनोमीटर के है। और यहाँ पर हमने ये जहन में रखना है कि इस लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो 200 नैनोमीटर है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एवरेज साइज है वो 200 नैनोमीटर के अंदर आता है। तो वी कैन नॉट सी देम अंडर दी लाइट माइक्रोस्कोप। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर आपने ध्यान में रखनी है। टू सी देम वी हैव टू सी दीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम with the help of the electron microscope. अब हम इनकी अपीयरेंस की बात करते हैं तो अपीयरेंटली यू कैन सी ओवर हियर इन द डायग्राम एज वेल कि these are connected. These are connected with nuclear membrane. And see over here from nuclear membrane, these structures are going to move towards the cell surface membrane structure. So here you can see in this diagram, that these endoplasmic reticulum are going to move towards the cell surface membrane. So they are spreaded within the cytoplasm and they develop a network, that is the membranous network around the nuclear envelope. So here you can see the nuclear envelope present. In this nuclear envelope, we have got this network of the membrane bounded structure, which is called as the endoplasmic type of the reticulum. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर आपने ध्यान में रखनी है। अब विजुअली तौर पर ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और इसकी जो मेम्ब्रेन है, यानी कि ईआर की जो मेम्ब्रेन है, तो दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, नाम आपने जो है वो ध्यान में रखना है। इसकी मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है स्ट्रेनिंग से।
तो ये इसकी मेम्ब्रेन का नाम है सिस्टर्नी, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को मेंशन कर रहा है। आमतौर पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्प्रेड होते हैं, यानी कि इसकी आप पोजीशन याद रखनी है, तो ये स्प्रेड होते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवलप टू सेल मेम्ब्रेन within an animal cell or within a plant cell. These endoplasmic reticulum are going to spread from the nuclear envelope towards the cell surface membrane. So they have developed a network system which has got minute membranous structure, and they contain these small tube-like structures that can be seen over there. So these tube-like structures develop a channel network throughout the cytoplasm from the nuclear envelope towards the cell surface membrane. अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बन जाती है कि these endoplasmic reticulum by function are responsible for intra intracellular, right? So these are responsible for a very important activity which is called as the intercellular transport. Endoplasmic reticulum function is to transport material within the cell. It is responsible for intracellular transport, right? So transport within the cell surface area. Anything which is produced inside this nuclear region, and it has to be supplied towards the, सपोज करते हैं कि ये सप्लाई होना चाहती है towards the this cytoplasmic area. A chemical substance is being produced here and it has to be transported towards the cytoplasm. So these ER are responsible to carry them from cytoplasm and then transported towards the nuclear region. Or if any substance can be produced inside the nuclear region, it can be transported towards the cytoplasm. आपने ये ध्यान में रखना है कि विदिन सेल ट्रांसपोर्ट ये इस पर्टिकुलर सेल के स्ट्रक्चर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू परफॉर्म हो रही होती है। टाइप्स के हवाले से इसको लेकर चलते हैं। तो वी हैव गॉट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हियर आई एम गोइंग टू जस्ट mention them their types. As for the types of ER are concerned, so these ER are responsible for the transportation of the substances, and these can be divided into two major categories. The first type or A type is known as the smooth endoplasmic reticulum. The first type that I am going to show you is known as the smooth endoplasmic reticulum. Right? Now, it is so called smooth endoplasmic reticulum because it means this type of reticulum means this type of this ER does not have ribosomes on their, or you can say on its surface, right? तो ये आपने ध्यान में रखना है, smooth reticulum does not have ribosome on its surface. तो ये आपने ध्यान में रखनी है बात, on its surface. अब आपने जहन में रखना है कि यहाँ इस डायग्राम में ये वाला जो पोर्शन है ये शो कर रहा है SER को, राइट? और ये जो दूसरा पोर्शन है ये शो कर रहा है RER को। तो यहाँ से आपको ये बात जहन में रख लेनी है
के SER और RER एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड चल रहे होते हैं। नंबर्स इनके कम या ज्यादा हो सकते हैं, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होकर एक जैसे फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और अपने अलग फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो SER है, this SER by function, these are responsible for, I am going to write down their function. So one of the function of SER to synthesis of lipids molecule. So one of the important function of smooth endoplasmic reticulum is to synthesis of lipid molecule. Besides these are also responsible for detoxification of the drugs. So here the second function is called detoxification of drugs, right? So different types of drugs are being utilized or used by the human being. अब वो उन ड्रग्स के जो भी कंटेंट हैं जब वो लिवर में पहुंचते हैं तो लिवर में जाने के बाद इन ड्रग्स की जो टॉक्सिसिटी है इसे बायोकेमिकली रिमूव करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए ER अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो आपने फंक्शन की हद तक बस इस बात को अपने जहन में रख लेना है। स्मूथ ER क्योंकि लैपिड सिंथेसिस की मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर आ जाती है कि किसी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर की अगर रिलीजिंग होनी है या फॉर्मेशन होनी है तो ER प्लेज इट्स रोल, कि वो उस पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर के लिए जो उसका जो रैपर है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसकी जो कवरिंग है, उसकी सिंथेसिस के लिए लैपिड्स मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन को इंश्योर करने का काम कर रहा होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ जो दूसरे रेटिकुलम हैं इनके हवाले से हम बात करें तो सेकंड टाइप का, ये बी टाइप का जो रेटिकुलम है, इट इज कॉल्ड एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So second type of reticulum is known as the rough endoplasmic type of reticulum. Now, as name suggests, it has got some sort of roughness on its surface. So you can see in this diagram that blue part has got the small dots on its surface that makes it rough. तो ये हमारे कहलाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मींस दीज आर द ER that have ribosomes on their surface. So since they have got ribosome on their surface, so appearance is big like their appearance is bit like the rough. So these are called as the rough endoplasmic reticulum, and sometimes these are also known as granulated endoplasmic reticulum. So GER or RER both are same things. Usually, since they have got the ribosomes on their surface, so by nature these are responsible for protein synthesis. I am going to repeat this function again. The endoplasmic reticulum, which have got protein on its surface, are responsible for protein synthesis. तो किसी भी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से अगर कोई फंक्शन की बात होगी तो वो फंक्शन होगा राइबोसोम और उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। तो सिंस these endoplasmic reticulum have ribosomes on their surface, तो इन्हीं राइबोसोम्स की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि SER लाइपिड सिंथेसिस करते हैं, RER प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। दोनों की
जो कंबाइन एक्टिविटी है वो मिलकर किसी भी सेल ऑर्गेनेल के लिए मेम्ब्रेन फॉर्मेशन का फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो ये आपने जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात को अपने नोट में रखना है कि हमें जब कभी ईआर के हवाले से बात होगी तो इस पर्टिकुलर जो है वो फंक्शन को हम ध्यान में रखेंगे। और किसी फंक्शन की बात करें तो एक जनरलाइज फंक्शन ईआर का हमें ध्यान में रखना है, वो ये है कि जो जो हमारे पास ये मौजूद हैं ई आर, दोनों की जनरलाइज में बात कर रहा हूँ मैं। ये ई आर एक तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरा ये है कि ई आर दीज आर रिस्पॉन्सिबल, ई आर मॉडिफाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसे आपने थोड़ा सा डिटेल में समझना है, और वो डिटेल कुछ इस तरह की है कि जब कभी भी एक न्यूली पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म, सो इट हैज गॉट बट दिस न्यूली पॉलीपेप्टाइड चेन की जब कभी भी फॉर्मेशन होगी तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड अटैच्ड होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान फर्स्ट अमीनो एसिड का काम कर रहा होगा। ठीक है, इस बात को आपने जहन में रखना है कि एवरी पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल जब कभी भी अपनी सिंथेसिस प्रोसेस के जरिए अपनी जो है वो फॉर्मेशन को परफॉर्म कर रहा होगा, तो अमाइनो एसिड की एक सीक्वेंस उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर जैसे एक अमाइनो एसिड की चेन शो कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट शेप ऑफ द अमाइनो एसिड, और ये मैं रेंडमली फॉर्म कर रहा हूँ, इसमें किसी किस्म की कोई भी यहाँ पर हम स्पेसिफिसिटी शो नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ अमाइनो एसिड की एक चेन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो कि इस तरह से बनती हुई चली आ रही है। ठीक है, तो एक शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड है और इट हैज गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड that can be identified by their shape. So this one is amino acid number 1, this is amino acid number 2, this is amino acid number 3, which is fourth amino acid, fifth amino acid, sixth amino acid, and seventh amino acid chain. ठीक है, यहाँ तक आपको अगर बात क्लियर हो गई है तो मैं अपनी बात को फिर आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बात हो रही है। अब जब ये अमीनो एसिड बन जाते हैं और अमीनो एसिड की अरेंजमेंट हो जाती है तो एक पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल अपनी प्रॉपर फॉर्मेशन पर आ चुका होता है। ठीक है, इसके बाद ये पॉलीपेप्टाइड आफ्टर देयर फॉर्मेशन इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर देयर प्राइमरी मॉडिफिकेशन। तो ये जो मॉडिफिकेशन हो रही है इस पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड की आफ्टर दी ट्रांसलेशन फॉर्मेशन शिफ्टेड टू दी ईआर, ताकि ये अपनी मॉडिफिकेशन कर सके। ये मॉडिफिकेशन ईआर ने परफॉर्म करनी है, और वो मॉडिफिकेशन क्या है कि एक इनएक्टिव ये एक इनएक्टिव पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट करता है एक्टिव पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि एक अमाइनो एसिड की जब अरेंजमेंट हो जाएगी तो आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड एक एक्टिव पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी फ्रॉम द इनएक्टिव पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल के। और ये काम जो करना है, ये काम हमारे सेल में परफॉर्म करना है इस रफ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। ठीक है बेटा, जब ये एक्टिवेट पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है तो देन इट इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ईआर टुवर्ड्स द गोल्गी बॉडीज,
सो दैट सेकेंडरी मॉडिफिकेशन गोल्गी बॉडी में परफॉर्म हो सके। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस राइबोसोम की सरफेस पर बनती है, एक पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल बनेगा, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल इनएक्टिव होगा, अपनी एक्टिवेशन के लिए वो जाएगा सीधा जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी प्राइमरी मॉडिफिकेशन करेंगे, और ये प्राइमरी मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से होगी कि इसकी जो एक्टिवेशन है वो परफॉर्म जो है वो हो जाए। अब दिमाग में जनरली ये बात आती है कि जो अमाइनो एसिड इनएक्टिव से एक्टिव हो रही है, सॉरी पॉलीपेप्टाइड चेन जो इनएक्टिव से एक्टिव हो रही है, वो जो है वो हमारा क्या काम कर रही है। ठीक है, इसे आपने ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपके सामने करने जा रहा हूँ, इसको जरा आपने जो है वो देखना है। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि किसी भी अमाइनो एसिड में जब किसी भी पॉलीपेप्टाइड में जब अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बनती है, तो ये जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है इसका नाम होता है मिथेनॉइन, जिसे हम शो करते हैं MET से। ठीक है, ये है मिथेनॉइन, फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल। ये मिथेनॉइन जब तक इसमें मौजूद होगा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन इनएक्टिव रहती है। आफ्टर दी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जब ये इनएक्टिव पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक शिफ्ट होगा, तो ER में स्प्लाइसिंग करनी होती है, यानी कि इस मेथेनॉइन को सीक्वेंस से रिमूव करना होता है, ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन अपनी एक्टिवेशन की तरफ आ सके। ठीक है बेटा, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में हेल्प कर देती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो सेकंड सेल स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है। इसको नाम दिया जाता है कि ये है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है। मैं आज से इसके लिए लिख देता हूँ कि दीज आर ऑल्सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर। नाउ दीज गोल्गी बॉडीज अपीरेंटली आपको नजर आ रही हैं डायग्राम में, these endoplasmic sorry these Golgi bodies apparently are the membranous folds, जैसे इस तरह से अपनी अपीयरेंस को शो कर रहे हैं, और ये बेसिकली स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन कहलाते हैं। ये गोल्गी बॉडीज हैं, these are known as the these are known as the stacks of membranes, राइट। अब ये जो स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन है या ये हीप ऑफ मेम्ब्रेन है, तो हम हीप ऑफ मेम्ब्रेन का नाम भी दे सकते हैं। ये आपको नजर आ रहा है कि बिल्कुल इस तरह से अरेंज है जैसे कि प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखी होती है। वी कैन से कि ये मेम्ब्रेनस प्लेट्स है दैट आर अरेंज वन बाय वन, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गोल्गी को शो कर रहा होता है। 1898 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैमिलो गोल्गी। इसने इस सेलुलर स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन की थी। उसके नाम पर इसे गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस का नाम दिया जाता है। सही है बेटा। अब अगर आप देखें तो ये जो गोल्गी बॉडी है, इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये गोल्गी बॉडी जो सेकेंडरी मॉडिफिकेशन हैं, सेल की सेकेंडरी प्रोटीन की सेकेंडरी मॉडिफिकेशन, तो सेकेंडरी मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इसमें अपना बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। सेकेंडरी मॉडिफिकेशन से मतलब हम ये लेते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल हैं
ठीक है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, these amino acids develop radical bonding। अब ये जो रेडिकल बॉन्डिंग है, ये अमाइनो एसिड के जो रेडिकल ग्रुप्स होते हैं उनकी केमिकल बॉन्डिंग को मेंशन करता है। लाइक एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो रेडिकल बॉन्डिंग होगी उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, चार तरह के रेडिकल बॉन्ड हो सकते हैं। हर पॉलीपेप्टाइड अपनी स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से अपनी रेडिकल बॉन्डिंग स्टेब्लिश करेगा, और ये रेडिकल बॉन्डिंग स्टेब्लिश हो रही होगी गोल्गी एपरेटस। तो ये इसकी प्रोटीन की एक बेसिक जो है वो सेकेंडरी मॉडिफिकेशन कहलाती है। दूसरा ये है कि these Golgi bodies also responsible for the modification of proteins, sorry, of you can say organic compounds और केमिकल कंपाउंड्स, ज़्यादा बेहतर वर्ड है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। अब यहाँ क्या इसको मतलब के तौर पर लेंगे, वो आपने ध्यान में रखना है कि अगर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बिल्कुल स्टेब्लिश हो चुका है, इस प्रोटीन के साथ इसमें शुगर को मिला देना है गोल्गी बॉडी में केमिकली, और इसे एक नए मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये लेकर आ जाता है। अब शुगर और प्रोटीन को कंबाइन कर कर हम नाम देते हैं ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है ना, तो ये मॉडिफिकेशन हो गई, और उसे भी सेकेंडरी मॉडिफिकेशन का नाम देंगे। सिमिलरली प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, लैपिड्स भी जो है वो ईआर में अपनी फॉर्मेशन करते हैं। तो लैपिड और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं एक बहुत ही कॉमन सा नाम, जिसको नाम दिया जाता है लिपोप्रोटीन का। यहाँ पर लैपिड प्रोटीन कंबाइन होकर फॉर्म करेंगे लाइपोप्रोटीन मॉलिक्यूल। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट फीचर आता है कि लाइपिड्स और शुगर ये भी आपस में केमिकली बॉन्डेड हो सकते हैं। तो ये बनाते हैं ग्लाइकोलाइपिड्स। अब ध्यान में रखें बेटा, ग्लाइकोलाइपिड्स बन रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बन रहे हैं, लाइपोप्रोटीन बन रहे हैं। ये सारी की सारी मॉडिफिकेशन इस स्पेसिफाइड गोल्गी बॉडीज में परफॉर्म होती है। आफ्टर देयर फॉर्मेशन अब गोल्गी में अपना एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करना होता है, और वो है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है गोल्गी की, और यह है पैकेजिंग ऑफ दी सेल सीक्रीशंस। ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो आपने याद रखना है। गोल्गी ने केमिकल सब्सटेंसेस को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद वो उनको पैक करती है, और पैक करने के बाद उसे अपने सरफेस से बाहर इस तरह से रिलीज करेगी एक सिक्रेटरी वेसिकल की फॉर्म में। अब ये जो सिक्रेटरी वेसिकल है, इसे हम लाइसोसोम का नाम दे सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें ये जो लाइसोसोम है, इसमें एंजाइम्स होंगे, और एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के हैं। इसी तरह से इस सेक्रेटरी वेसिकल को हम एक छोटा सा वेसिकल कह सकते हैं दैट कैन कैरी अ हार्मोन, और वो हार्मोन अपनी जो है वो बायोकेमिकल नेचर के लिहाज से लिपिड्स, प्रोटीन, स्टेरॉइड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो किसी भी सेल की सिक्रीशन में गोल्जी ने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये पैकेजिंग है ऑफ दी सेल सिक्रीशंस, और ये पैकेजिंग जब सेल सिक्रीशन में हो रही है तो ये अपने साथ कैरी कर सकते हैं एंजाइम्स को, यानी कि इन वेजिकल्स में एंजाइम्स हो सकते हैं। ये कैरी कर सकते हैं हॉर्मोन्स को, यानी कि इन वेजिकल्स में हॉर्मोन्स हो सकते हैं, या इन वेजिकल्स में हमें नजर आएगा कि सेल्यूलोज भी हो सकता है इन केस ऑफ प्लांट्स। तो ये वेजिकल कंटेन करती है सेल्यूलोज,
और मैं यहाँ पर एक साथ में प्लांट की एक लिख रहा हूँ एक लिमिट कि प्लांट्स के जो गोल्गी बॉडीज हैं उन्होंने सेल सिक्रीशन के तौर पर सेल्यूलोज सिक्रीट करना है, जो कि सेल वॉल बनाने के लिए अपना रोल प्ले कर सकता है। प्लांट्स में सेल्यूलोज सेल वॉल के लिए ये गोल्गी सिक्रीशन रिलीज होगी। एनिमल्स में हार्मोन और एंजाइम्स के लिए ये जो गोल्गी के वेजिकल्स हैं, इन्हें हम कंसीडर कर सकते हैं वेजिकल या लाइसोसोम की फॉर्म में, जो कि सेल के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा जो है वो एक लेसन। उम्मीद है आपके आपको इस लेसन से बहुत कुछ अंडरस्टैंड करने को मिला होगा। लेसन में कुछ जो है वो बातें ऐसी हैं जो कि फर्दर डिटेल की जा सकती हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेसन में एक नए सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको लेसन अच्छे लग रहे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके कंटेंट को, इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे दूसरे स्टूडेंट भी इससे जो है वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो जो है वो कैरी कर सके। अल्लाह हाफिज।